हेलो एवरीवन। आज मैं आपको 10वीं क्लास की इंग्लिश लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द द ब्लैक एरोप्लेन जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरस्मिथ की डिटेल्स हमारी बताने वाली हूँ। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज अ पायलट एंड ही वाज flying his old Dakota 088 aeroplane to over the France, and he was going to England, and he hoped to spend his holiday with his family, and he loved having English breakfast. And then he checked his watch, and it was 1:30 in his watch in the morning. Then he contacted Paris Control. Uh, he contacted Paris Control, and they told him to turn 11 degrees west, and he was 150 degrees from Paris. Suddenly, the writer saw huge black clouds around him, and it was not easy and it was not possible to fly fly up and over the clouds, because he did not have much fuel in his aeroplane, and it was not easy to fly around the big mountains of the cloud. And he decided to take the risk, and he entered straight into the black clouds. He stayed, and then suddenly everything went blank, and his compass had his compass had stopped working. Then he tried to contact the Paris control for the direction, but when he was shocked to find that the compass had also stopped working. Then suddenly he saw a black aeroplane, and he could also see a pilot in it. And then the pilot waved the writer to follow him. Then the writer decided to follow him like an obedient child, and the writer had been following the black aeroplane for half an hour, and he was worried because he had the fuel of his plane could last only 5 to 10 minutes. Then he saw that the black aeroplane started going down, and suddenly he saw that he came out from the black he suddenly he saw that he came out of the black clouds, and he could see the lights of the runway of the airplane. He could he could see the lights of the airport. He could see the lights of the runway of the airport. Then he looked back to see the black aeroplane, but there was no one. Then he landed his plane, and he went to the control center, and he asked a woman who was the pilot. Then the woman looked at him strangely and laughed, and said to him that there was no any other planes were flying in such a stormy night, and she told him, yours was a only plane flying in the sky according to the radar. And then he was thinking that who
who was the pilot of the black aeroplane and where had it gone. And as this the story ended mysteriously, and the conclusion of the story is that if you believe in yourself, you can in any situation. If you believe in yourself in any situation, whether the how the situation is tough, you can come out from that situation if you are able to manage yourself and if you are confident. कहानी इस कहानी के राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर स्मिथ, जो कि एक पायलट है। एक रात वे अपनी ओल्ड डकोटा 088 एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहे थे और वो बहुत खुश थे कि वो अपनी छुट्टियां अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे और उनको फ्रांस से इंग्लैंड जाना था और उनको इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना भी बहुत पसंद था। तो वो इन्हीं के बारे में सोच रहे थे। फिर उन्होंने अपनी घड़ी को चेक किया और घड़ी में 1:30 बज रहे थे, सुबह के 1:30 बज रहे थे। फिर उन्होंने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट किया। पेरिस कंट्रोल ने उन्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने के लिए कहा और उन्होंने वैसे ही किया जैसे कि पेरिस कंट्रोल ने उन्हें बताया था। फिर अचानक से राइटर ने देखा कि बड़े बड़े काले बादल अचानक से उनके चारों ओर फैल गए और ये बहुत मुश्किल था उसके ऊपर से उड़ना, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फ्यूल नहीं था, एरोप्लेन में ज़्यादा फ्यूल नहीं था और उन पहाड़ जैसे बादलों के ऊपर से उड़ाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उन्होंने रिस्क लेने का सोचा और वो सीधे अपने प्लेन को उस बड़े पहाड़ जैसे बादलों के अंदर अपने एरोप्लेन को लेके गए। और जब वो बादलों के अंदर एंटर किया तो उन्होंने देखा उनके सब चीज़ें काम करना बंद कर दिया। उन्होंने देखा कि उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था और जब उन्होंने पेरिस कंट्रोल को दिशा के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने वो देख कर बहुत हैरान हुए कि उनका कंपास और रेडियो भी काम करना बंद कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। अचानक से उन्होंने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा और उसमें से उन्होंने एक पायलट को भी देखा। उन्होंने देखा कि पायलट हाथ हिला रहे हैं उनको अपने पीछे आने के लिए, तो उन्होंने उनको पीछा करने का डिसाइड किया। फिर राइटर ने ब्लैक एरोप्लेन को आधे घंटे तक पीछा किया और वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 से 5 मिनट के लिए ही अपने एरोप्लेन में फ्यूल था। तो अचानक से उन्होंने देखा कि ब्लैक एरोप्लेन नीचे की ओर उड़ने लगा। तो उन्होंने उनको फॉलो करते हुए वो अचानक से देखे कि वो उस ब्लैक क्लाउड से निकल आए और वो एयरपोर्ट के रनवे के लाइट्स को देख सकते थे। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उस ब्लैक एरोप्लेन की ओर देखा, तो वहाँ आसमान में कोई नहीं था। फिर उन्होंने अपनी प्लेन को लैंड कराया और कंट्रोल सेंटर में एक लेडी के पास गए और उन्होंने उस लेडी को पूछा कि वो पायलट कौन थे जो उस स्टॉर्मी नाइट में अपना प्लेन उड़ा रहे थे। तो उस लेडी ने उनको देखा, बहुत अजीब तरह से देखा और हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इस तूफान भरी रात में कोई भी प्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था सिवाय आपके। और जब राइटर ने ये सब सुना तो वो सोच में पड़ गए और उन्होंने थैंक बोला और मिस्टीरियस मोड पे ये स्टोरी मिस्टीरियस तरीके से एंड हो जाती है। और इस स्टोरी का मेन मोटिव यही था कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आप अगर कॉन्फिडेंट है अपने को
आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आप कोई भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, आप उसको पार कर सकते हो। थैंक यू।